پھر آگے کی کہانی یہ ہے دوستوں کہ میں جب پھر مجھے 7 مہینے کے بعد مجھے یہ لے کے آ گئے میرے گھر سے، اور تب لے کے آ گئے تو مجھے پھر ایسے ہی رکھ دیا، میں کروں گا۔ اب ان کی ماں نے کہی میں نہ کھاؤں اس کے ہاتھ کی روٹی، اس سے نہ بولوں۔ وہ کہنے لگے کہ جب تم ہاتھ کی روٹی نہ کھاؤ اور اس سے بولو نا تو یہ کہاں جائے گی، نیارے کر دو ہمیں۔ جب تم نے دودھ کی بھی منع کر دی، بچے کی سب چیز کی منع کر دی، تو ہمیں نیارے کر دو۔ اب نیارے کرنے کے بعد پھر بھی ان کا ہی کرتے رہے ہم، کوئی بات نہ ہے تو بھیا ہی اب یہ مطلب ہم کرتے رہے ان کی پریشانی میں، کوئی بات نہ، ایسے تو چلتا رہ گئے۔ اب انہوں نے ہماری اس کی وہ نہیں چاہی کہ ہاں یہ کر رہے ہیں، اپنا اپن مان رہے ہیں، پر انہوں نے ہمیں اپنا نہیں مانا کبھی بھی۔ ان کے بڑے بھائی نے، ان کی ممی نے کبھی بھی اپنا نہیں مانا۔ اب تو ان کی ممی بھی نہیں رہی کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی زیادہ ہی، تو ان کے پاس ہی رہ کر رہی۔ اب انہیں کھانا پینا ٹھیک سے نہیں دیتے تھے یہ، اب وہ چلی گئیں۔ اب وہ انجیکشن بھی لگتے تھے، شوگر کی پریشانی ہے ان کے، تو وہ چلی گئیں۔ اب چلی گئیں تو کچھ بات نہ، اب جیسے بھی ہوئے گا بھگوان کرے گا۔ اب ہم نیارے ہو گئے تھے، جب انہوں نے کر دیے ہم نیارے، سب چیز کی منع کر دی کہ ہم نہ دے رہے تیرے کچھ بھی، نہ ڈیری ملے اور نہ تجھے کچھ ملے۔ ہم نے کہا ایسے تو ہمارا بچہ نہ پلے بنا دودھ کے، بنا روٹی کے، ایسے تو یہ روٹی بھی گن گن کے دے رہے ہیں۔ جب میں روٹی بھی کھاتی تھی تو ایسے گنتی تھی کہ روٹی کتنی کھا گئی ہے۔ اب بڑی والی جنٹ تھی ہماری، بڑی والی کہتی تھی کہ وہ تو سبزی کے نیچے گھی کھاتی تھی۔ میرے جاپے کا بھی گھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ میرے جاپے میں جو آیا تھا نا 15 کلو یا 25 کلو مطلب 10 کلو تو بعد میں آیا، 15 کلو پہلے آیا، مطلب دونوں بار کا میرا گھی نہیں چھوڑا۔ بولی کہ ہماری ساس کہ اس سے روٹی چپڑی جائیں گی۔ میں نے کہ میرے شریر میں جان پڑ رہی ہے بنا گھی کے۔ میری ممی نے کر کے، ماما کے یہاں سے آیا، ماما کے بھینس دودھ دیتی تھی، اب وہیں سے گھی کروایا ممی نے، وہیں سے بھیجا گھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بڑھیا گھی ہے۔ اب یہ نوں کہتے تھے کہ نہ روٹی چپڑی جائیں گے، گھی نہ کھواؤں میں تجھے۔ میں نے کہ نوں گھی روٹی چپڑی ہوئی نہ کھاتے، میں نے کہ میں نہ کھاؤں تو سبھی ہیں۔ تو ایک دن ساگ بنا، میں اور سبزی میں ساگ روٹی وہ نہ کھاتی تھی گھی گیر کے، تو میں لونی گھی نہ کھاتی تھی، کیونکہ میں نے شروع سے ہی لونی گھی کھاتی تھی پہلے، پر مجھے گھی ساگ میں تیا ہوا ہی اچھا لگے۔ تو میں نے ایک دن ڈبہ لیا اور ساگ میں گھی گیرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں کہنے لگی، من کی بولی کہ ہاتھ میں سے میری ساسو ماں نے ڈبہ چھین لیا گھی کا ڈبہ چھینتی بولی کہ گھی نہ گرے ساگ میں۔ من کی کیوں نہ گرے، میں تو پہلے مطلب ساگ میں پہلے سے ہی گھی گیر کے کھاؤں، گھی اچھا لگے ساگ میں گیر کے۔ بولی نہ ہم نہ گرن دے رہے، ڈبہ نہ ملے، گھی نہ ملے، روٹی چپڑی جائیں گی، اور سب کھا کر رہے گھی گیر گیر کے۔ میں نے کہ میں لونی نہ کھاتی، لونی گھی نہ کھاتی میں، اور میں تو تیا ہوا ہی کھاؤں گی ساگ میں گیر کے گھی۔ بولی کہ نہ ایسے نہ کھان دیں۔ میں نے کہ کوئی بات نہ ہے، ایسے نہ کھان دو تو۔ اب بھیا ہاتھ میں چھین لیا تو پھر کیا عزت رہے گی۔ پھر دوسرا بچہ ہوا، مطلب نیارے میں ہوا ہے بچہ، ہوا نہیں ہے، مطلب پیٹ میں ہی گڑبڑ ہو گئی، پریشانی ہو گئی، تو میرے دقت ہو گئی ہی، مطلب دھڑکن نہ بڑھی، تو وہ اس کی صفائی کروانی پڑی دوسرے بچے کی۔ اور پھر میری ممی آئی، میری ممی سے کہنے لگی میرے گھر میں تو سب کی موج ہے،
जैसे परेशानी में आई ही, जैसे सफाई हुई ही। मेरे घर में तो सबकी मौज है, हमारी सासू माँ बोली। तो मेरी मम्मी को आ गया गुस्सा, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से सारी बात बता रखी है। तुम्हें पता है कि बेटी की बात तो कोई माँ से छुपती नहीं है। अब मैं तो भैया मेरी माँ से ही बताऊँगी, जब मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। पति मेरा 24 घंटे खेत में और घर में और सानी करने में, डेयरी पे बैठने में ही रह करे। तो मैं किससे बतलाया करी, मेरे दोहरा तो सोने के लिए भी नहीं आया करे, मतलब बाहर ही सुआ देख रही, यहाँ पड़ी है खाट तेरी, यहाँ सो जा। मन की कोई बात ना, इतनी वो रही मेरे साथ में। मैं कहने लगी, मन की चलो कोई बात ना। अब मैं ऐसे ही करती रही तो मम्मी को आगा गुस्सा। मम्मी मैं तो अंदर ही लेट गई ही, क्योंकि मेरे नशा सा हो रहा, नशे से तो कर रही है सफाई। अब सफाई हो गई, ले आए मुझे डॉक्टर के पास से। तो इनकी दोनों की आपसी में बात हो रही है। तो मम्मी की लड़ाई होगी सासू मासू की, तेरे घर में ना है कुछ भी, मेरी बेटी की नहीं है, और तू सफाई मत ना देगा नु क्यों ना। तो मम्मी को तेज आ गया गुस्सा, और मम्मी एक पल भी नहीं रही यहाँ पर। तुरंत ही मेरे भाई से कहने लगी कि बाइक ठा और चल यहाँ से, मुझे ऐसी औरत के धोरे नहीं रहना। जैसी औरत ये है कि कुछ भी नहीं खाने दिया इसने तुझे, और जो घी भी छीन लिया हमारा, जो हमारे घर से आया। तो मम्मी एक पल भी रुकी नहीं। मम्मी को इतना तेज़ गुस्सा आया। अब तुम्हें पता है गुस्से में तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा मुँह से, कुछ भी निकल सकता है। तो ऐसे ही करते करते मम्मी चली गई। मम्मी ने ना बात भी करी फिर बाद में। अब ऐसी चलती रही। फिर ये अब इनका हुआ, मतलब पहले तो हुआ बड़े वाले का, जैसे बुग्गी ले जा रहा एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट नहीं, वैसे ही गुम लग गई ही बस। बुग्गी ऊपर को भैंसा उठ गया है और यूँ टेढ़ा होकर और गिर गया है साइड में। बड़ा वाला हमारा भाई साहब जेठ, तो वो गिर गया है, उसका लग गई गुम चोट। तो बता दी कि एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट ही मानो, ये चीज़ एक्सीडेंट ही है। तो फिर ये पानी लगा रहे हैं खेत में। अब भाग का आए रात के टाइम, जैसे मिल में ले जा रहे हैं बुग्गी बड़े वाले, जब न्यारे हो गए हैं हम। तो एकदम भाग कर गए और इन्हें ले आए। फिर हल्दी वल्दी का दूध दिया, सब कुछ करा। तो 1.5 महीने इनकी सेवा करी हमने। सेवा ये करी कि मैं तो परेशान ही है। फिर वो कहने लगी कि हमारी सासू माँ, इनसे छोल में चला जा और पर्ची आई है और एक काट के छोल कर दे, और अगोले लिए ये, और जो मतलब इनके है ना ढोर, उनके ढोरों का भी न्यार हम ही करा, और इनकी सानी भी हम ही करे, और इसकी डेयरी पे भी हम ही बैठे करे। सारा काम मतलब A to Z हम ना करा। और हम आए करे 2-2 बजे। हमारे बच्चे को कोई रोटी भी नहीं देख रहा, मतलब 2-2 3-3 बज जाए करे, हमारे बच्चे को रोटी भी नहीं देख रहा कोई। और हम आ जाए करे तो हमारी सासू मनु बनना कह करे कि तू रोटी खा ले, तुम काम करके आए हो। फिर सानी करने लग जाए करे इनके ढोरन की। तो हमने पूरा A to Z, और ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। और देख लो ना, तो इनकी भाभी ने यूँ कही कि खाना खा लो या ना खा लो। हम 2-2 3-3 बजे आए करे बुग्गी भर भर के, हम दोनों आदमी अकेले बुग्गी भरे करे छोल करके। और इन्हें यूँ नहीं गई कि तू खाना खा ले। 2-2 3-3 बजे हमने फिर आके खाना बनाया। जब हम खाना खाए करे, मैं कहने लगी, मन की ऐसे कब तक कटेगी, अब तो 1.5 महीना होगा, अब तक कब तक होएगी सेवा। अब तो चल लगा, अब तो खूब बढ़िया चल रहे, खूब बढ़िया घूम रहे हैं, मतलब सारा ही काम A to Z हमने करा इनका, और इनको कोई दिक्कत ना रही। फिर अब हमारा नंबर आया, अब हमारे पास नहीं बचा कुछ भी। अब जो नौकरी करते रहे करे ये, तो जो आया करे ही सैलरी, वही डॉक्टर के चली जाए करे हमारी। तो इनका हुआ एक्सीडेंट। ऐसे ही तो देखा जाए आदमी, इनका हुआ एक्सीडेंट ड्यूटी से आती बगैर, बोले कि
अब वहीं से फ़ोन आया ड्यूटी से, मेरी तबीयत यहाँ पर ख़राब थी। आया फ़ोन दूसरे के फ़ोन से, उस टाइम पे इनका फ़ोन ख़राब हो रहा, ख़राब पता नहीं कैसे स्क्रीन फूट गई, उसकी स्क्रीन फूट गई। तो रास्ते में फ़ोन आया किसी के फ़ोन से, और घर वाले फ़ोन पे ही उससे नंबर बता दिया। तो दूसरा, अब एक बात बताओ, जब इनके चोट लग गई ही, इनके चोट इतनी लग गई बहुत ही ज़्यादा, दूसरे लड़के ने फ़ोन करा किसी ने, जैसे ड्यूटी से आ रहे चोट ज़्यादा लग गई, उसे नंबर बता दिया, थोड़ा बहुत होश आई ना तो नंबर बता दिया। हाँ, नंबर बताते ही बोला कि तुम अमित के घर से बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो लड़का तो घबरा गया, कई बार आया घर पे, मम्मी पापा ना आए, मम्मी पापा ना आए। मैं कहने लगी, मैंने कि 10-5 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई बात ना है, काम वाम लग जावे, ऐसे ज़्यादा काम दे दे कोई, भैया ड्यूटी तो ड्यूटी है, जैसा मालिक कहेगा ऐसे ही करेगा। मैं कहने लगी, मैंने कि टाइम लग गया होगा, 10-20 मिनट हो जा। अब 8 साढ़े 8 बज गए, 8:30 बजे फ़ोन आया, नू अमित के घर से बोल रही हो। तो इनने तो उठाया ना, मम्मी ऐसे कह रहे हैं, मम्मी की उसके घबराहट हो गई, मम्मी ऐसे कैसे कह रहे आई, अमित का नाम कैसे ले रही हैं पापा का। मैं कहने लगी ला, फिर मैं कैडी सी हुई, उठी, मैंने कंबल गिर रखा हो अपने ऊपर, उस टाइम कंबल नहीं गिर रखा, खेस ओढ़ रखा, और अगस्त का महीना, 5 अगस्त का, तो मैंने खेस ओढ़ रखा, बुखार चढ़ रहा बहुत तेज़। तो मैं ना कैडी सी हो के मैंने कि हाँ भैया अमित के घर से बोल रहे हैं ना, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब तुम ये चाहो कि पता नहीं क्या बीतती है, हैं क्या बीतती है। फिर मेरा क्या, जब मेरा कोई साथ नहीं देता तो मैं क्या सोचती हूँ, मैंने कि मेरा ना बचा कुछ भी, मैं हमें नहीं पता कुछ भी। फिर तो लड़का भी और मैं भी इतने परेशान हुए हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि जो आ तो गए सब। इनकी बहन भी नहीं आई, मतलब इतनी, तुम्हें तो पता ही है पैसे वाले के पास आते हैं हर कोई। अब हमारा डॉक्टर का इतना खर्चा है, तो पैसे कहाँ से रहेंगे हमारे पास। तो बड़े वाले के पास ही बहन आती है इनकी, तो बहन भी देखने नहीं आई, इतनी चोट लगी ही। फिर जब एडमिट कर लिए देवनंदिनी में, मतलब हापुड़ में देवनंदिनी है हॉस्पिटल, तो उसमें एडमिट कर दिए। जो नया हाईवे बना है गढ़ की तरफ से जो आते हैं, वो नया हाईवे, उस पर एक्सीडेंट हुआ है, मतलब सिकेड़े में एक्सीडेंट हुआ, सिकेड़े की पल्ली सड़क पे ही, तो वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। और जब इतनी चोट लगी इनके, फिर जब इतना नहीं आगे घर, इतना मुझे शांति नहीं मिली। मैं कहने लगी, मैंने कि इतने में आना जाएंगे ना, इतने मुझे आराम नहीं मिला। तो वो रात को 1-1:30 बजे ही आ गए, 1-1:30 बजे आ गए। और इनकी हड्डी वड्डी, मतलब इनके खून 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 हो रहे सारे में, अब सर में भी खून है, दोनों घुटने में खून है, और ये हड्डी निकल गई इनकी, बाहर निकल गई, इतना बाहर आ गई बहुत ज़्यादा। और पैर में भी ज़्यादा ही, मतलब गुम भी ज़्यादा ही, नाड़ वाड़ कतई ऐसा हो गई, मुड़ गई। और यहाँ ये टूट गया सारा, यहाँ से निकल गई सारी, और सर में खून है, रगड़ के जैसे रकस लगी ही, रकस लग के जैसे गिर के और ऐसे फिसल गए है, बहुत ज़्यादा चोट लगी ही। तो फिर जैसा सुनी ही किसी ने, तो बड़े वाले से गई ही किसी ने कि हाँ चला जा, तेरे भैया की चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। तो जब गया फिर लेके आ गया, फिर ये रात भर चिल्लाए करे है, और मैं इनके तकिया लगा के ऐसे बैठी रह करी पूरी रात। मैं कहने लगी, अब ये चिल्लाए करे थोड़ी सी हलते ही, इतनी चोट लगे करे इनके, चोट लगी ही इनके, तो ये चिल्लाए करे ऐसे लगा कर तकिया, मैं बैठी रह करी, मिर्च कह करे कि तू सो जा। मैंने कि मैं ना सो रही।
नू सो जा। मैंने कि मैं ना सो रही, इतना तुम ना सोओगे। अब ये हलते ही बिल्कुल हलेक रही ही बाजू या कंधा, नाड़ वाड़ हिलते ही तुरंत रोने लगे। मैंने कि तुम्हें ऐसा देखते ही मैं सो जाऊंगी ना, ऐसा ना सोवे तो। अब भैया मैं और ये आपस में हम ही करते रह करे। मैंने कही अपने बेटे से, मैंने कि बेटे अपने ताऊ से कह दे, मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है उस टाइम पे, अपने ताऊ से कह दे बेटा मेरे पे ये उठ ना रहे, उठ उठ के जैसे बैठाए कर रही या बाथरूम करवाए कर रही ना या लेटरिन करवाए कर रही, सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। मैं कह रही मैंने कि बाबू 2-4 दिन ताऊ सो जाएंगे इनके धोरे, अब मेरे बस की ना है क्योंकि मेरी हो रही है तबीयत ख़राब। अब तबीयत ऐसी हो रही है कि मेरे सारी पूरी शरीर में दर्द रह गया है। और दर्द ऐसा रह गया है कि हड्डी हड्डी कमज़ोर हो गई। जब दवाई खाती रहूँ, कुछ भी दूध नहीं पी, मतलब सारा परहेज बता रखा। अब परहेज में मुझे 15 साल हो गए। पहले टाइफाइड का परहेज करा, मतलब बहुत बीमारी हैं। अब मैं आप लोगों के सामने मैं क्या क्या शेयर करूँगी ये बताओ, क्योंकि परेशानी तो अंदरूनी आपको तो पता ही होगा कि क्या क्या होती है लेडीज़ के अंदर। तो ये दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। काला पीलिया बन गया, उसमें ही काला पीलिया ज़्यादा बढ़ गया, तो उसमें मुझे परहेज करना पड़ा। वो तो पूरी ज़िंदगी का परहेज हो गया मेरे साथ। मैं कहने लगी मैंने कि जी बुला लो ना अपने भैया को और जो कर दूँगी। मना कर दिया जी, मेरे बस की ना है सोना यहाँ पर। मैंने कि कोई बात ना है, ना सोना तो देखो हमें तो मजबूरी है करना, मजबूरी है रहना इनके पास। अब देखो मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। सब ने हाथ हिला दिया कि हमारे बस की ना है इसका करना, और जो अपने आप कर लेगी वह तेरी जान है। और सब ने यही कह दिया। अब सब ने आना जाना ही छोड़ दिया। अब हमने कर्ज लेके देखो 5 के सूद पे तुम्हें पता है कितनी जल्दी कर्ज चढ़ाए। कर्ज लेके हमने और जो इलाज करवाया, और बहुत दिन तक इलाज चला इनका। फिर बहुत टाइम बाद इनकी ड्यूटी लगी। बोले कि मैं ड्यूटी बिना तो बीचे ना मेरी ना, और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी बिना ड्यूटी के, क्यों खर्चा पानी भी नहीं चलेगा। मैं कहने लगी चलो कोई बात ना, ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। अब देखो अब हमने एक छोटा सा घर है जो पुराना है, हमारे हिस्से में आया आज। मैं कहने लगी मैंने कि तुम एक काम करो, इसे बेच दो। अब 5 के सूद पे हमारा 3-4 लाख रुपए हो रहा, क्योंकि मेरे ऊपर भी लगा रहा, इनके ऊपर भी लगा है, और बच्चे की भी तबीयत ख़राब हुई और ड्यूटी भी नहीं हो पाई ही कई महीने, और तो कर्ज ही कर्ज हो गया हमारे ऊपर ज़्यादा। मुझे भी एडमिट कर दियो करना पड़ता इन्हें। तो मैं कहने लगी मैंने कि इस मकान में बेच दो छोटे से को, और कर्ज उतर जाएगा हमारा। और हमारी चीज़ बीज भी सब बिक गई इस बीमारी के चक्कर में ही, हमारी चीज़ बीज भी बिक गई। हम हो गए बिल्कुल मतलब न्यूट्रल, मतलब जैसे यूँ कहते हैं ना बिल्कुल खाली। तो उस हिसाब से हम हो गए। अब एक बात बताओ, गरीब आदमी तो गरीब ही हो गए, अमीर अमीर ही हो गए। अब जब हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, हमारे घर वाले भी बहुत ही गरीब हैं क्योंकि हमारे माँ बाप चले गए। अब हमारे भाई जो हैं, तुम्हें तो पता है जब माँ बाप पैसा लगे है ज़्यादा, भाई की एक की नौकरी लग रही, एक गांव में खेती कर रहा। अब भाई इंजीनियर है, अब उनकी नौकरी छुटी ऐसे कि मम्मी पापा की ज़्यादा हालत ख़राब होगी, तो उन्हें मजबूरन आना पड़ा। तो एक भैये पे ना सिमली बात, अब शादी हो गई ही उन दोनों की। अब किसी की घरवाली ऐसे ही रुकी नहीं, क्यों ना रुकी, कोई कुछ या तो वे गंदी हों या कैसी, मैं तो ये नहीं जानती भाई कैसे नहीं रुकी। हमारा घर बार तो बढ़िया है पहले। अब किसी ने छोटे वाले को बहका दिया कि तू ऐसा कैसे रह रहा है, ऐसा कैसे। अब बहका दिया तो वो उल्टे सीधे ऐबों में लग गया, मतलब पीन लगा।
पैक लगा अब पैक लगा तो भैया से कही ही भैया मेरे पे ना होगा मम्मी पापा का, तुम अपने आप कर लो। उनकी भी शादी हो रही है, अब उनके 2 बच्चे हैं। अब वो बेंगलोर में रह रहे, बेंगलोर में इंजीनियर की नौकरी कर रहे। अब उसने जब ऐसा कह दी और वो पीने के चक्कर में रह गया, तो भैया ने ही सारा काम करा घर का, मम्मी पापा का, सबका। तो उन पे भी कर्ज हो गया। जब नौकरी छूट गई तो कर्ज होने के बाद और फिर अब यहीं है गांव में ही। अब तुम्हें पता है जब कर्ज हो जा तो वो पूरी कर्ज ही हो, वो उतरा नहीं अभी तक। तो भैया भी मेरे कहाँ से साथ देंगे जब उनके पास भी कुछ नहीं है। तो अब कभी नौकरी लग जाती है, कभी अब जो मकान बेचा हमने वो कर्ज तो उतार दिया। अब ये परेशानी है, कर्ज तो उतर गया, वो 5 लाख का बैठा, मतलब 5 लाख का जो मकान बेचा 5 का ही हमारा वो नहीं 7 लाख का बैठा, 7 लाख का बैठा है। अब 4 लाख के हिसाब से लगा लो, 4 के ऊपर ब्याज बन गया 3 लाख और, तो कर्ज तो हमारा उतर गया। और जो वैसा कर्ज है जो बीमारी का अलग और भी है वो नहीं उतरा। अब लोन रह रहा है जो हमने खेती पे ले लिया थोड़ा सा लोन, वो पटा नहीं अभी, क्या करें। अब कर्ज कहाँ से। अब 12,000 मिले, 12,000 में भी वो रख ले हैं, वो भी 15 दिन बाद मिले हैं।